आगे कर्नाटक में कांग्रेस का रुकन असेंबली रिजवान अरशद ने बच्चों के सोशल मीडिया के मामले को एक समाजी मसला करार दिया और कहा कि इस मसले पर न सिर्फ मुल्क बल्कि पूरी दुनिया में संजीदा बहस होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हर खानदान में कम उम्र बच्चे होते हैं और सबको इस बात की फिक्र है कि वो सोशल मीडिया पर गैर ज़रूरी मालूमात से मुतासिर हो रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि सोशल मीडिया के जरिए कम उम्र बच्चों के जज्बाती इस्तेहसाल और जहनी दबाव के खदशात को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। See, it is a societal issue. The whole country or the whole world should debate. We all have young children at our homes, in our families. We are all concerned that how much are they getting exposed to unnecessary issues which at that age should not have been exposed. How they are being exploited emotionally, how they are being disturbed mentally, the small children, with unfiltered information, with unfiltered issues going on in social media. So there has to be some restriction. As a parent, I feel that this is an issue which the society should take up, and the government has rightly taken up these issues. सिर्फ कर्नाटक ही नहीं, आंध्र प्रदेश के वजीर आला चंद्रबाबू नायडू ने रियासती असेंबली में अहम ऐलान किया। उन्होंने कहा कि हुकूमत 13 साल से कम उम्र बच्चों के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाने या सोशल मीडिया तक रसाई महदूद करने के इम्कानात पर गौर कर रही है। అదే సమయంలో అధ్యక్ష ఈరోజు మనం నిన్న పాపులేషన్ పాలసీ తీసుకొచ్చాం. ఇటీవల ఐటీ మినిస్టర్ గారు కొత్త ప్రోగ్రాం అంటే 13 సంవత్సరాలు వయసు లోపల ఉండే వాళ్ళకి సోషల్ మీడియా బ్యాన్ చేస్తే బాగుంటుందని ఒక సూచన వచ్చింది. తప్పకుండా తొందరలోనే 90 డేస్లో 13 సంవత్సరాల లోపల ఉండేవాళ్ళు సోషల్ మీడియాకు అందుబాటు లేకుండా చేసే కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుడతాం. 13-16 సంవత్సరాలు చర్చ చేస్తున్నాం. అందరూ ఒప్పుకుంటే దాన్ని కూడా ఏం చేయాలని ఆలోచిద్దాం. అల్టిమేట్గా సోషల్ మీడియా వల్ల మన పిల్లలు నష్టపోవడానికి వీలు లేదు. దానికి ప్రభుత్వం కట్టుబడి ఉంటుందని మరొకసారి మీ ద్వారా రాష్ట్ర ప్రజానికానికి విజ్ఞప్తి. आंध्र प्रदेश के वजीर आला चंद्रबाबू नायडू ने रियासत में गिरती हुई शरह पैदाइश पर तशवीश का इजहार किया और नई पॉपुलेशन मैनेजमेंट पॉलिसी मुतारिफ कराने का ऐलान किया है। अमरावती में रियासती असेंबली से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि अगर किसी खानदान में दूसरा या तीसरा बच्चा पैदा होता है तो हुकूमत की जानिब से पैदाइश के वक्त 25,000 रुपये की माली मदद दी जाएगी। वजीर आला के मुताबिक रियासत में टोटल फर्टिलिटी रेट यानी शरह पैदाइश कम हो चुके हैं। उन्होंने खबरदार किया कि नौजवान आबादी में कमी मुस्तकबिल में मुआशी तरक्की को मुतासिर कर सकती है। నేను ముందే చెప్పాను మీకు దగ్గర 1 చైల్డ్ పాపులేషన్ 58% ఉన్నారు. 2,17,000 మంది ఉన్నారు. 3 అండ్ అబౌవ్ 62 లక్షలు ఉన్నారు. దగ్గర 3 లక్షల మంది 2 కంటే ఒకరే ఉండేవాళ్ళు, 2 కంటే ఎక్కువ ఉండేవాళ్ళు 3 లక్షల మంది పిల్లలు ఉన్నారు. ఇప్పుడు మంది 1.5% టిఎఫ్ఆర్, దాన్ని 2.1కి తీసుకెళ్ళాలి. ఛాలెంజ్ అంతా ఎకానమీ అభివృద్ధి అవుతూ ఉంది. అభివృద్ధి అయినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా డబ్బులు సంపాదించే విధానంలో పిల్లలు దొరుకునే పరిస్థితి వస్తూ ఉంది. దీనివల్ల చాలా దేశాలు ఇబ్బంది పడ్డాయి. అందుకే ఒక నూతనమైన విధానం కోసం ఈరోజు మేము ఆలోచించేది ఈ రెండో బిడ్డ కానీ చైల్డ్ కానీ 2 కంటే అబౌవ్ ఎంతమంది వాళ్ళు ఇచ్చేస్తే డెలివరీ సమయంలోనే 25,000 రూపాయలు ఆ పేరెంట్స్కి డబ్బులు ఇస్తామని చెప్తున్నాం. ఇది ఒక పెద్ద గేమ్ చేంజర్గా తయారవుతుంది. దీన్ని మనం చేయగలిగితే చాలా వరకు ఉపయోగపడుతుంది. ఇంకొక పక్కన ఇది కాకుండా మీరందరూ ఆలోచించినప్పుడు ఎవరైతే గవర్నమెంట్లో పనిచేసే వాళ్ళందరికీ భార్య భర్త ఈక్వల్ పేరెంటింగ్ అది చేయాలనుకున్నప్పుడు మగవాళ్ళకు కూడా రెండో బిడ్డ అయితే 1 నెల అదనంగా పేరెంటింగ్ కోసం లీవ్ గ్రాంట్ చేస్తాం. అదే మరి 2వ బిడ్డ కన్నా 3వ బిడ్డ అయితే అనదర్గా 1 మంత్ 2 నెలలు ఇస్తాం. అంటే 1
महाराष्ट्र में अजीत पवार तैयारा हादसा मामले में सरगर्मियों का सिलसिला जारी है। एनसीपी शरद चंद्र पवार के रुकन असेंबली रोहित पवार ने मुंबई में नायब वजीर आला एकनाथ शिंदे से मुलाकात की और हादसे से मुतालिक तफसीली दस्तावेजात उनके हवाले किए। रोहित पवार ने इस मौके पर कंपनी के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा करते हुए ये इल्जाम लगाया कि कंपनी से बाद सियासी पार्टियों के लीडरान के भी रवाबित हैं, जिसकी वजह से तफ्तीश दुरुस्त सिमत में आगे नहीं बढ़ रही। रोहित पवार ने इस मामले में गैर जानिबदाराना तहकीकात का मुतालबा किया है। See, VSR, in the presentation, I had specifically given information about certain leaders associated with VSR. There are some TDP big leaders, there are some BJP leaders, and when so many leaders are associated with this company, so then there's a risk in going forward if VSR owner is taken in custody, if he is made responsible for the accident, which he is, so then he may take names of many more leaders. So that's the reason why VSR has been protected. Plus, there are certain businessmen which are associated with certain political parties. They also have planes and money invested in this particular VSR company. So that's the reason why this investigation is not going in the right direction. The minister, who's our aviation minister, is from TDP. TDP is already linked with VSR. So we feel, and plus DGCA and AIB come under the Ministry of Aviation. Now, if the minister himself is somehow linked with VSR, then how he will do proper investigation are some of our main questions. That's the reason why we feel he has no right to stay at that particular place or that particular position. That's the reason why he should resign, and this investigation should happen transparently. This is what we want. आंध्र प्रदेश के शहर विजयवाड़ा में शिया मुस्लिम बिरादरी की जानिब से एक पुरअमन रैली निकाली गई, जिसमें ईरान के मजहबी रहनुमा आयतुल्लाह अली खamenei को खिराज अकीदत पेश किया गया। रैली के दौरान शुरका ने हाथों में प्ले कार्ड्स थामे रखे थे और अमन व इंसाफ के हक में नारेबाजी की। उन्होंने कहा कि इस इज्तिमा का मकसद आलमी सतह पर अमन का पैगाम देना और मजलूमों के साथ इजहार यकजहती करना है। आज हम यहाँ पर जो जमा हुए हैं वो दुनिया को ये बात बताना चाहते हैं कि हम आयतुल्लाह खामेनेई जो रहबर मोहतरम, जो रहबर मुअज़्ज़म, जो मुस्लिमीन के और खुसूसन जहान इस्लाम के जो रहबर थे, कायद थे, उनको नाहक उन पर जुल्म किया गया और उनको शहीद किया गया। और हम यहाँ पर जमा हुए हैं कि उस शहादत पर हम भरपूर तौर पे मजम्मत कर रहे हैं। हम राजी नहीं हैं, इनको बेहक और नाहक कत्ल किया गया है और खुदाबंद आलम जल्द अज जल्द उसका बदला लेगा इंशाअल्लाह। और तो कुछ नहीं हुआ पी के बहक जाने से, और तो कुछ नहीं हुआ पी के बहक जाने से, बस बात मैखाने से मैखाने की बाहर गई। मैं तो ये कहूंगा, मैं जुमे में भी बोला कि आज मेडलिस्ट में और सारी दुनिया में ये जो नाम नेहाद मुस्लिम है, चाहे ये वहाबियत पे हो या और कोई भी दर्जे के लोग हों, ये सिर्फ बोलने के हद तक ही काम आते हैं। तमिलनाडु के वजीर आला एम.के. स्टालिन ने चेन्नई में मुनक्किदा अवामी शिकायत के प्रोग्राम में शिरकत की। यह प्रोग्राम अवाम के मसाइल और तजावीज़ सुनने के मकसद से मुनक्किद किया गया। वजीर आला ने अवाम से बराह रास्त बातचीत की और उनके मसाइल, मुतालिबात और ख्यालात को भी सुना। इस मौके पर सरकारी स्कीमात से फ़ायदा उठाने वालों ने बराह रास्त अपने तजुर्बात भी साझा किए। இந்தியா விடுதலை பெற்றபோது வறுமையான மாநிலங்கள் பட்டியலில் தமிழ்நாடு இருந்தது. கடந்த அரை நூற்றாண்டில் பல கட்ட முன்னேற்றங்களை கண்ட தமிழ்நாடு ஒரு அசுர வேகத்தில் அடுத்த கட்டத்தை நோக்கி பாய்ச்சலோடு முன்னேறுவதற்கான ஒரு நாள் வந்தது. முத்துவேல் கருணாநிதி ஸ்டாலின் என்னும் நான் மாண்புமிகு முதலமைச்சர் தலைமையிலான திராவிட மாடல் அரசு பொறுப்பேற்ற போது உச்சத்தில் இருந்த கொரோனா பெருந்தொற்று, மோசமான நிதி நிலைமை, ஒன்றிய அரசின் பாராமுகம் என சவால்கள் வரிசை கட்டி நின்றன. நிர்வாக
तमिलनाडु के जिला शिवगंगा में एक सफाई मुलाजमा की ईमानदारी की मिसाल सामने आई है। घर घर जाकर कचरा जमा करने वाली खातून सेल्वी को कचरे की छंटनी के दौरान जेवरात से भरा एक डब्बा मिला। जब उन्होंने डब्बा खोला तो उसमें तकरीबन 120 ग्राम सोने के जेवरात मौजूद थे, जिनकी मालियत लगभग 18 लाख रुपए बताई जा रही है। सेल्वी ने ईमानदारी का मुजाहिरा करते हुए अपने शोहर के साथ करीबी पुलिस स्टेशन जाकर जेवरात पुलिस के हवाले कर दिए। पुलिस ने तहकीकात के बाद असल मालिक की शिनाख्त करके जेवरात उनके हवाले कर दिए। बताया गया कि जेवरात दरअसल एक बच्चे ने घर के कचरे के डब्बे में डाल दिए थे, जिसका खानदान को इल्म नहीं हो सका। बाद में जेवरात के मालिक ने सेल्वी की ईमानदारी से मुतासिर होकर उन्हें 20,000 रुपए इनाम के तौर पर भी दिए। कर्नाटक के जिला रायचूर से खबर है कि अफसोसनाक वाकये में भेड़ों के एक फार्म में आग लग गई, जिससे सैकड़ों भेड़ें हलाक हो गई। ये वाकया एक गांव में पेश आया। इतलात के मुताबिक कल रात तकरीबन रात 2 बजे फार्म में अचानक से आग भड़क उठी, जिसके नतीजे में 700 से ज्यादा भेड़ें जलकर हलाक हो गई।